ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। ये बात तो हमने सुनी ही होगी। तो चलिए ये स्पीच सुनते हैं हम प्रेसिडेंट ट्रम्प की, कैसे वो ज़ेलेंस्की पे भड़क गए और कैसे वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बता रहे कि अगर वो पीस टॉक नहीं करते रसिया से, तो वो यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे और वो जो यूक्रेन और रसिया वॉर है, उसमें से निकल जाएँगे। For the good of the world. I'm aligned with the world, and I want to get this thing over with. You see the hatred he's got for Putin? That's very tough for me to make a deal with that kind of hate. He's got tremendous hatred. So it's not a question of alignment. I'm aligned with the world. I want to get the thing set. I'm aligned with Europe. I want to see if we can get this thing done. You want me to be tough? I could be tougher than any human being you've ever seen. I'd be so tough. अब यहाँ पे डायरेक्टली ट्रम्प कह रहे हैं कि कोई भी दूसरा ह्यूमन बीइंग है, उससे वो ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। मतलब कि ये ना समझे कि ट्रम्प सख्त नहीं हो सकते, लेकिन ट्रम्प गुस्से में आ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये जो ज़ेलेंस्की जी का मुद्दा है और रशिया और जो यूक्रेन की वॉर है, उसको सुलझाना है और वहाँ पे पीस टॉक स्थापित करना है। यही वजह है कि ट्रम्प गुस्सा नहीं कर रहे और जो भी है ट्रम्प सुनते जा रहे हैं और ट्रम्प ने ये भी कह दिया कि ज़ेलेंस्की को पुतिन से नफ़रत है और अगर ऐसी ही नफ़रत चलती रही, तो ट्रम्प पीस टॉक नहीं करवा पाएँगे रसिया के साथ। Respond to this. So look, for 4 years, the United States of America, we had a president who stood up at press conferences and talked tough about Vladimir Putin, and then Putin invaded Ukraine and destroyed a significant chunk of the country. The path to peace and the path to prosperity is maybe engaging in diplomacy. We tried the pathway of Joe Biden of thumping our chest and pretending that the president of the United States' words mattered more than the president of the United States' actions. What makes America a good country is America engaging in diplomacy. That's what President Trump's doing. यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हो, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, वो डोनाल्ड ट्रम्प की तारीफ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने किया वो बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने यूक्रेन को साथ दिया रसिया के वॉर में, लेकिन उन्होंने पीस टॉक पर बात नहीं की पुतिन के साथ। अब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि पुतिन जो है वो ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो बाइडेन का तरीका था वो गलत था और जो ट्रम्प पीस टॉक करना चाहते हैं वो बिल्कुल सही है। Okay, so he occupied our parts, big parts of Ukraine, parts of East and Crimea. So he occupied it on 2014. So during a lot of years, so I'm not speaking about just Biden, but those time was Obama, then President Obama, then President Trump, then President Biden, now the President Trump, and God bless, now President Trump will stop him. But during 2014, nobody stopped him. He just occupied and took. He killed people, you know, what they call 2014. We're not here. Right. Yes, but during 2014 till 2022, yeah, the situation the same. The people are been dying on the contact line. Nobody stopped him. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, bilateral conversation, and we signed with him. Me, like a new president in 2019, I signed with him the deal. I signed with him Macron and Merkel. We signed ceasefire. All of them told me that she will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JG, you are speaking about? Talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country as. यहाँ पे डायरेक्टली ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि पहले भी वो पीस टॉक कर चुके हैं, लेकिन जो पुतिन जो है उन्होंने सीज फायर हमेशा तोड़ा है। जब फ्रांस उनके साथ था तब भी उन्होंने पुतिन के साथ सीज फायर किया, लेकिन पुतिन ने हर बार सीज फायर तोड़ा और यूक्रेन के लोगों को मार दिया। वहीं पे ट्रम्प का ये कहना है कि जब भी सीज फायर टूटा तब ट्रम्प सरकार में नहीं थे। ये डायरेक्टली ट्रम्प ने कह दिया। अब यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनसे ज़ेलेंस्की ने सवाल पूछा, आप कौन सी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो? आप उस डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो जिसमें सीज फायर पुतिन बार बार तोड़ रहा है? अगर हमने सीज फायर कर भी दिया तो भी पुतिन जो है वो सीज फायर तोड़ देगा। ये डायरेक्टली ज़ेलेंस्की ने कहा। और आगे मैं बता दूं, ये बहस बहुत ही लंबी चली। ये बहस में बहुत ही सारे वार पलटवार हुए और उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प भी गुस्से में आ गए। अब ट्रम्प क्यों गुस्से में आए ये आपको आगे पता चलेगा, लेकिन ज़ेलेंस्की ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वो पीस टॉक नहीं करेंगे, वो सीज फायर नहीं करेंगे, वो अपनी जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। Try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for idea to bring it into this. Have you ever been to Ukraine? Did you see what problems we have?
I have been to Kangwon. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems like bringing people in your military after? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the big issue. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice horse and don't feel now, but you will feel it in the future. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. We're in no position to dictate what we're going to feel. So right now, not in a very good position. You've allowed your story to be in a very bad position. Sabbath, from the very beginning of the war, and as the British shows, You don't have the cards right now. आपने देखा डायरेक्टली जो ट्रम्प है वो गुस्से में आ गए। ट्रम्प क्यों गुस्से में आए? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि ज़ेलेंस्की ने ये कह दिया कि अमेरिका के आसपास ओसिन है, इसी वजह से अमेरिका को जो है वो फर्क नहीं पड़ता। तो इसी पे ट्रम्प गुस्सा हो गए। ट्रम्प ने कहा कि आप हमें मत सिखाइए कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, और जब भी लड़ाई लड़ी जाएगी तब अमेरिका जो है वो सबसे स्ट्रांग नजर आएगा। ये डायरेक्टली ट्रम्प ने कहा। ट्रम्प ने आगे ये भी कहा ज़ेलेंस्की से कि आपको हमको हमारा काम नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि हम यहाँ पे पीस टॉक करने आए हैं यूक्रेन और रशिया के बीच, ना कि अमेरिका की बात करने आए। ये डायरेक्टली ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को कह दिया, और जो वाइस प्रेसिडेंट है यूएस के, वो भी ज़ेलेंस्की पे गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि उनको रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. please, you think that if you will speak very loudly about the war, He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. No, you're not winning this. You have a damn good chance of we are okay because there's a threat. We are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone and we are safe. I said things you have in this cabinet. If you hold this, we get this stupid president $350 billion. We get for you, president. Better if they had used our military. Didn't have our military equipment. If you just have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days. This is amphibious in 2 weeks. Of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. अब डायरेक्टली यहाँ पे ट्रम्प गुस्से में आ गए और ट्रम्प ने डायरेक्टली कह दिया कि ऐसे हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, और ट्रम्प ने ये भी कह दिया कि $350 बिलियन हमने दे दिए आपको वॉर में। तो अब डायरेक्टली ट्रम्प ने ये कह दिया कि ऐसे तो हम पीस टॉक नहीं कर सकते, आपको अगर पीस टॉक करना है तो आपको अमेरिका से थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने आपकी बहुत मदद की। और आगे यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी कहा कि एक भी बार आप थैंकफुल नहीं हो प्रेसिडेंट ट्रम्प के, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो सुलझाना चाहते हैं आपकी जो मुश्किलें हैं। उसी पे ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं थैंकफुल हूँ, और आगे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये कह लिया कि अगर हम वॉर में ना होते, मतलब कि अगर हम आपका साथ ना देते यूक्रेन का, तो क्या आप ये वॉर इतने टाइम तक लड़ सकते? मैं बता दूं प्रेसिडेंट ट्रम्प और ज़ेलेंस्की की बहुत सारे मुद्दों पे बहस हुई। अब आगे वहीं पे दूसरे नेताओं का क्या कहना है? दूसरे देश के नेताओं का ये कहना है कि वो यूक्रेन के साथ है, फ्रांस यूक्रेन के साथ है, जापान यूक्रेन के साथ है, और मैं बता दूं पोलैंड भी यूक्रेन के साथ है और स्पेन भी यूक्रेन के साथ है। इन सभी देशों के राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि वो यूक्रेन के साथ है और वो यूक्रेन का साथ देंगे। बल्कि फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमने 3 साल पहले जो फैसला लिया था, जब यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ, तब जब फ्रांस ने फैसला लिया था कि वो यूक्रेन का साथ देगा, वो फैसला सही साबित हुआ और वो यूक्रेन का साथ देता रहेगा। ये डायरेक्टली फ्रांस ने कहा है, और यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश है सब अभी भी यूक्रेन के साथ है और किसी ने यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन यहाँ पे अमेरिका के तेवर जो है वो अलग नजर आ रहे हैं। शायद अमेरिका अपनी मिलिट्री अब पीछे खींच ले। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।